Assalamu alaikum. Today's lecture will be about negative transformation. Many students are facing a lot of difficulty in understanding what is negative transformation. Grammatically speaking, this is very easy because we can very easily be able to transform a positive sentence into a negative sentence. But when it comes to syntax or syntactic analysis, this becomes a bit more difficult and a bit trickier. But as far as I am concerned, today I have tried, as I have already done in my previous lectures, to explain this topic in a very easily understandable manner. And I hope that after the end of this lecture, you people will be able to understand all these aspects of negative transformation. So I have written that negative transformation. Before starting negative transformation, we need to you can say recapture our lecture of transformation, and we know very well that transformational generative grammar is a theory that was propounded by Noam Chomsky, and his grammar has two parts. One is transformational and the other is generative. So, as far as transformational aspect of language is concerned, this means that we can be able to transform one sentence into many sentences. In other words, you can say that we can transform the deep structure into surface structures. This is what we have already touched upon. So, we can transform sentences two different ways, and one way is called negative transformation. So, what is negative transformation? Assertive or declarative sentences are divided into two kinds. You know very well that I have also explained in my lecture that there are four or five kinds of sentences according to purpose. Assertive sentences are declarative sentences, imperative sentences, then optative, exclamatory sentences, then you can say interrogative sentences. So these are the kinds of sentences according to purpose. So the first kind that we discussed in that lecture was assertive sentences or declarative sentences. So there are two kinds of assertive sentences or declarative sentences. One are the positive or affirmative sentences, and the other are negative sentences. As I have written in example, he is a student. This is a positive sentence or affirmative, and this can be transformed into a negative sentence by adding the adverb not. He is not a student. This is a negative sentence. You see that in TG means transformational generative grammar. As Noam Chomsky says that addition, deletion, and movement, these are the process, or these are the ways through which we can transform one sentence into the other sentence. So in TG, a basic sentence can be transformed through addition, deletion, and above all movement. What is a basic sentence? The deep structure. The deep structure is the basic sentence, while the changed form of the deep structure is called the surface structure. So you see that 1A is he is a student. So this is a basic sentence, and this is a affirmative or positive sentence. Then 1B, he is not a student. Here what we have done is that we have actually added or inserted the adverb not in order to transform this positive sentence into the negative sentence. So A means addition, and this means that we have done this by means of addition. In 1C, you see that is he a student. We have transformed this affirmative sentences into the interrogative yes no question by means of movement. That's why I have written movement. So that is how we can say that transformation takes place, and we will also be able to study you can say in the next lecture what is the world order movement, and especially what is the WH movement, WH transformation. So you see that verb phrase and negative transformation. So as far as the verb phrase is concerned, the verb phrase, it occupies a very important position when it comes to negative transformation. So you see that when we transform a positive sentence into a negative sentence, we insert or add not into the verb phrase. Understood? I think you can be able to understand very easily. वर्ब फ्रेज के अंदर जब हम वर्ब फ्रेज को जब हम एक जुमले को पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको तब्दील करते हैं, तो हम उसके वर्ब फ्रेज के अंदर नॉट का जो एडवर्ब होता है उसे इंसर्ट करते हैं, उसे एडिशन उसका कर देते हैं. आगे उसकी एग्जांपल भी लिखी गई हैं, ये देखें. वर्ब फ्रेज जो होता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो वर्ब फ्रेज क्या होता है, वो कहता है वी पी
VP मतलब वर्ब फ्रेज, इट कंसिस्ट ऑफ, एरो मीन कंसिस्ट ऑफ वी वर्ब प्लस NP, यानी वर्ब और नाउन फ्रेज पे कंसिस्ट करता है। आर PP preposition phrase, R adverb phrase. Since I have already told you that these brackets are, this means that these words are optional, यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि यानी वर्ब फ्रेज आमतौर पर वर्ब और नॉन फ्रेज पे कंसिस्ट करता है, लेकिन कभी कभार जो होता है PP भी आ जाता है, कभी कभार एडवर्ब फ्रेज भी आ जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, ये कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन नाउन फ्रेज मस्ट आता है। इसके बाद देखें ये वर्ब फ्रेज है, इसके एग्जांपल लें एक पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, डिस्ट्रॉयड अ गार्डन। अब डिस्ट्रॉयड अ गार्डन के अगर एग्जांपल है तो वर्ब फ्रेज कैसे बनता है? वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर ये होता है कि जो वर्ब फ्रेज होता है वो एक आप कह सकते हैं कि वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर ये होता है, उसमें एक हेड होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। जितने भी फ्रेजेस होते हैं जैसे नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज है, उसके अंदर एक हेड होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हेड क्या होता है? जो उसका जो मेन लफ्ज़ होता है। जैसे देखिए वर्ब फ्रेज के अंदर हेड वर्ब होगा, ये डिस्ट्रॉय, ये हेड है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो उसके बाद में आएगा, जो उसके बाद में लफ्ज़ आता है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या होता है? वो उसका उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखें जैसे देखें डिस्ट्रॉय क्या है? वो वर्ब है और वो हेड है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? द गार्डन है और वो नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब इसका देखें हमने इसको डायग्राम के जरिए हमने कैसे एक्सप्लेन किया है कि देखिए वर्ब फ्रेज है वीपी किससे मिलके बना है? वी वर्ब और इसके बाद NP। ठीक है, अब देखेंगे डिस्ट्रॉय और NP क्या था? द गार्डन। ये इस तरीके से बना, ये वर्ब फ्रेज बना। इसके बाद आगे देखें वर्ब फ्रेज इन नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड राइट नो कि वर्ब फ्रेज जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। तो कहते हैं जैसे इन अ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉजिटिव वन वी इंसल्ट नॉट एज अ स्पेसिफायर। ठीक है, नॉट को एज अ स्पेसिफायर के तौर पे हम जो होता है ना इंसल्ट करते हैं। अब स्पेसिफायर क्या होता है? अब हम आगे इसको पढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। ये देखें ये तीन मैंने टर्म लिखे हैं। एक फ्रेज़ को समझने के लिए आपको तीनों टर्म्स आपको आने चाहिए, हर फ्रेज़ को समझने के लिए। नाउन फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, प्रेपोजिशनल फ्रेज़, ये समझो कि स्ट्रक्चर होता है हर फ्रेज़ का। ये देखें एक होता है इसमें स्पेसिफायर, एक होता है हेड और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी ये फ्रेज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यू कैन से। अब स्पेसिफायर क्या होता है? स्पेसिफायर प्रीसीड्स द हेड, जो हेड से पहले जो लफ्ज़ आता है उसको हम स्पेसिफायर कहते हैं। वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, यानी ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, यानी अगर नॉन फ्रेज हो तो एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब फ्रेज हो तो वो एडवर्ब होगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट फॉलोज द हेड, हेड के बाद जो लफ्ज़ आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए सिंपल सी बात है, नॉट डिस्ट्रॉय द गार्डन। अब इसमें डिस्ट्रॉय हेड है, हेड से पहले जो लफ्ज़ आएगा वो स्पेसिफाइड होगा और हेड से बाद जो लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमूआ जो फ्रेज़ आएगा उसको हम कहते हैं, उसको हम कहेंगे कि ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। अब जैसे देखें मिसाल मैंने लिखी भी हुई है कि स्पेसिफायर क्या? नॉट स्पेसिफायर ये एडवर्ब है। ठीक है, और हेड क्या है? डिस्ट्रॉय है। ठीक है, ये वर्ब है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? दी गार्डन, ये एक NP या नाउन फ्रेज है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे अब हम देख इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ट्री डायग्राम के ज़रिए। VP क्या होता है? VP यहाँ किससे बना है? स्पेसिफायर और इसके बाद ये V बार। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि X बार थ्योरी क्या होती है। ठीक है, X बार सिंटैक्टिक थ्योरी क्या होता है। तो V बार, अब V बार हमने क्यों इस्तेमाल किया? उसकी वजह पता क्या होती है? जब एक फ्रेज़ के अंदर स्पेसिफायर भी और कॉम्प्लीमेंट भी हो, दोनों चीज़ें जब होती हैं ना, ठीक है, तो फिर हमें वो X बार की थ्योरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, वो आगे हम इसको देखेंगे। अब जैसे देखें कि इसमें ये जो ये हेड है, हेड से पहले इसमें स्पेसिफायर भी है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी है, तो इसलिए हम V बार की हम थ्योरी इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि VP किससे बना है? VP बनता है स्पेसिफायर प्लस V बार, यानी V बार। अब V बार के स्पेसिफायर ज़ाहिर इसमें नॉट है, वो V बार क्या है इसके अंदर? वो V बार क्या होता है? वर्ब प्लस नाउन फ्रेज। ठीक है, यानी ये समझे कि वर्ब फ्रेज को दोबारा जब हम जाता है हम V बार की सूरत में हम कह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखें अब इसमें वर्ब कौन सा? डिस्ट्रॉय है और नाउन फ्रेज कौन सा है? द गार्डन। अब देखें यहाँ मैंने इसको ना रेक्टेंगुलर शेप में मैंने लिखा है, यानी मुसल्लस मैंने बना दिया है। ठीक है, इसका मतलब होता है बाज़ का जो ट्री डायग्राम बनते हैं ना, ट्री डायग्राम बाज़ का तो वो ना बड़ा एक जगह को कंज्यूम करता है। तो आमतौर पर यानी कुछ जो किताबों के अंदर उन्होंने जगह बचाने के लिए ये भी तरीका बताया कि हम उसको ना लहदा डिवाइड करने के बजाय एक रेक्टेंगुलर जो है कि मुसल्लस हम इस्तेमाल कर लें। जैसे देखें कि नॉट डिस्ट्रॉयड अ गार्डन है, ऊपर वाले को देखें कि ऊपर वाले में इसमें क्या फ़र्क आया, उसमें देखें ऊपर वाले के अंदर क्या था? डिस्ट्रॉयड अ गार्डन। अब इसमें स्पेसिफायर नहीं था, अब इसमें हमने क्या किया? स्पेसिफायर को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया?
ये यहाँ से बन के ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आगे देखते हैं इसकी और एग्जांपल्स हैं। अब एक जुमला हमने बनाया है, इसको हमने ये पॉजिटिव है, इसको फिर हम आगे नेगेटिव में तब्दील भी करेंगे। ये है द टीचर टॉट दिस बुक, ठीक है। अब इस जुमले को देखें, इसमें देखें कि एस नोड क्या कर रही है, जैसे पिछले लेक्चर में देखा था, एस नोड सेंटेंस नोड को हम कहते हैं। इट इज़ डोमिनेटिंग एन पी एंड वी पी, ये उनको डोमिनेट कर रही है। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है कि आगे ये देखें, ये था वी पी क्या कर रहा है, वो स्पेसिफायर है। यानी स्पेसिफायर जो होता है वो आर्टिकल भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो। अगर नाउन फ्रेज हो तो उसके अंदर आर्टिकल या एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब फ्रेज हो तो उसके अंदर एडवर्ब जो होता है ना वो स्पेसिफायर होगा। स्पेसिफायर का मतलब ये है जो स्पेसिफाई करता है, ठीक है। अब इसमें देखें स्पेसिफायर क्या है, दी टीचर, ठीक है, द टीचर, यानी इसे आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह, स्पेसिफायर की जगह, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ये क्या होगा, ये द टीचर होगा। अब इसके बाद वर्ब फ्रेज किस पे कंसिस्ट कर रहा है, वर्ब प्लस नाउन फ्रेज के ऊपर कर रहा है। अब वर्ब फ्रेज कैसे कर रहा है, टाट है, ठीक है। इसके बाद देखें कि एन पी है, इसके बाद स्पेसिफायर है, यानी उस पर। अब इसमें देखें इसके अंदर मैंने वी बार नहीं लिखा। वी बार क्यों नहीं लिखा, मैंने आपको ये बताया कि जब एक फ्रेज के अंदर हेड भी और स्पेसिफायर भी, हम वो एक्स बार वाले थेरी इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ना हो तो हम ऐसे लिख देते हैं। अब आगे देखें अगली एग्जाम्पल मैंने देखी है कि ये स्पेस को बचाने के लिए हम भी इसके रेक्टेंगुलर इस्तेमाल करें कि एस क्या है, एस इज डोमिनेटिंग एन पी एंड वी पी, और एन पी क्या होता है द टीचर, और द टाट डिस बुक जो है वी पी से डोमिनेट कर रहा है। अब आगे की एग्जांपल से आप समझेंगे इस चीज़ को। देखें आगे है द टीचर डिड नॉट टीच दिस बुक, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है कि व्हाट वी हैव डन इज़ दैट, कि हमने जो वो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की थियरी को अप्लाई करते हुए हमने इसमें एक तो एडिशन कर दिया, इसमें एक एडिशन भी आ गया, ये देखें डिड हमने लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने नॉट भी लगा दिया है, ठीक है। इन दो लफ्ज़ों का हमने एडिशन किया। अब इसको देखते हैं कि कैसे होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें देखें, इसमें आता है एस, एस की किसके इक्वल है, एस जो होता है किसको डोमिनेट कर रहा है, एन पी को कर रहा है, और वी पी को कर रहा है। अब जैसे देखिए एन पी के अंदर क्या है, एक स्पेसिफायर है जैसे दी है, और एक इसके अंदर टीचर है, लेकिन इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं है। देखें इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बस स्पेसिफायर और इसके बाद क्या है, उसके बाद नाउन है, ठीक है। इसके बाद हेड है, यानी ये स्पेसिफायर और ये हेड है, इसलिए हम इसको नाउन फ्रेज वाले नज़रिए से बयान करेंगे, ठीक है। तो ये एन पी हो गया। इसके बाद ऑक्सिलरी क्या है, इसके अंदर डिड क्या है, वो इससे ऑक्सिलरी है, ये सब दरमियान में लिख लिया जाएगा। इसके बाद देखिए वी पी। अब वी पी के साथ ये वी बार क्यों लगाया है, सो दोबारा इसको ये समझना इसलिए ज़रूरी होगा कि वी बार इसलिए लगाया है क्योंकि वी पी के अंदर स्पेसिफायर भी आ रहा है और हेड भी आ रहा है। अब स्पेसिफायर कौन सा, नॉट है, ठीक है। और टीच द बुक जो होता है, टीच इसमें हेड है, ठीक है, और द बुक क्या है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो जब एक यानी वर्ब फ्रेज के अंदर, किसी फ्रेज के अंदर, उसके अंदर एक हेड भी, हेड के साथ साथ स्पेसिफायर भी और कॉम्प्लीमेंट भी, तो हम वी बार वाली थेरी इस्तेमाल करें, इसे एक्स बार हम कहते हैं। जैसे देखें अब इसमें क्या है कि वी पी इज इक्वल टू स्पेसिफायर और वी बार, ठीक है। अब वी स्पेसिफायर क्या नॉट था इसके अंदर, अब वी बार क्या, वी बार फिर वो वर्ब और नाउन फ्रेज होगा, वो क्या होगा टीच, और नाउन फ्रेज क्या होगा, स्पेसिफाई होगा, उसके बाद द बुक होगा। तो ये इस तरीके से हम बयान करते हैं। इसके बाद आगे देखें कि ये हम स्पेस बचाने के लिए इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर डिड नॉट टीच दिस बुक, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि हमें जो बात याद रखने वाली वो ये होती है कि जब एक जो फ्रेज़ होता है, फ्रेज़ जो होता है उसके अंदर स्पेसिफायर होता है, ठीक है, और उसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट होता है, स्पेसिफायर कॉम्प्लीमेंटेड हेड। ये स्पेसिफायर जो होता है ये ऑप्शनल होता है, कभी होता है कभी नहीं भी होता, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो मस्ट होता है। अब देखें कि अगर एक फ्रेज़ के अंदर, एक फ्रेज़ वो नाउन फ्रेज़ हो, एडजेक्टिव फ्रेज़ हो, प्रेपोजिशन, अगर उसके अंदर स्पेसिफायर भी हो और हेड के बाद जो है ना कॉम्प्लीमेंट भी हो, तो फिर हम जो है एक्स बार वाली थेरी अप्लाई करते हैं। अगर वो ना हो बसूरत दीकर, तो फिर हम जो होता है हम उसको आम तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक में ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ल्ड आर्डर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके साथ हम देखें कि ये जो WH ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये क्या चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।